Hello students, how are you? I have prepared so many videos for first chapter class 10 from NCERT book, but my all videos were in English language. Some of the students complained me that if I would continue in English language, then some of the students who have poor background in English, they are unable to understand. That's why I have to speak some sentences in Hindi language also, so that they can understand easily. So when I will explain the chapter, few sentences I will speak in English, few sentences I will speak in Hindi language, so that those students who have poor background in English, they can easily understand. Standard 10th students, today I am going to explain from NCERT book, page number 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Completely 6 pages, from page number 15 to 20, class 10 from NCERT. Today I am going to explain from this page. Listen carefully. From here I am going to explain. Look this page. This is the page number 50. The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message. To large audiences who were mostly illiterate. This was especially so in the case of Poland, which had been partitioned at the end of the 18th century by the great powers Russia, Prussia and Austria. Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language. Karol Kurpinski, for example, celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dances like the Polonaise and Mazurka into nationalist symbols. So, dear students, I have already told you that vernacular language means local language or regional language. Regional languages or local languages were very supportive to increase the feeling of nationalism among the people. And through the regional language or vernacular language or local language, it was tried to increase or develop their national spirit.
and it was also very supportive to carry the modern nationalist message to large audiences who were mostly illiterate. प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं, क्षेत्रीय भाषा, वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा, जिसको हम लोकल लैंग्वेज और क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, ये भाषा राष्ट्रवादी भावना के विकास में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। इस भाषा के माध्यम से राष्ट्रीय संदेशों को, राष्ट्रवादी संदेशों को जन जन तक, जनमानस तक पहुंचाने का काम किया गया और उनकी राष्ट्रवादी चेतना को जगाने का काम किया गया। दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड। खास तौर से हम पोलैंड के केस में देख सकते हैं, जो 18th सेंचुरी के अंत में दो भागों में विभाजित था, विच हैड बीन पार्टीशन एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। वो पोलैंड जो कि कई भागों में बटा हुआ था, और उससे यूरोप के जो ग्रेट पावर्स थे, जो शक्तिशाली राष्ट्र थे यूरोपीय देश, जैसे रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रेलिया ने पोलैंड को कई भागों में विभाजित कर दिया। इसके बावजूद भी स्वतंत्रता के लिए उसकी लड़ाई जारी रही। पोलैंड के लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ाई जारी रखते हैं और उनमें राष्ट्रवादी चेतना जगाने का काम किया वहां की क्षेत्रीय भाषा ने। क्षेत्रीय संगीत और क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से वहां के लोगों की राष्ट्रीय चेतना को जगाने का काम किया गया, उनके नेशनल फीलिंग को जगाने का काम किया गया और उन्हें प्रेरित किया गया स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए यूरोपीय ग्रेट पावर से, खासतौर पर रसिया, प्रूसिया, ऑस्ट्रिया जैसे देशों से अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए या अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए स्थानीय भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं का सहारा लिया गया। कैरोल कुरस्पिंस्की, फॉर एग्जाम्पल, सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा एंड म्यूजिक। यहां तक कैरोल कुरस्पिंस्की, जो वहां का नेशनल लीडर था, उसने वहां की स्थानीय ओपेरा म्यूजिक के माध्यम से राष्ट्रीय संघर्ष को सेलिब्रेट किया। टर्निंग फोक डांसेज लाइक दी पोलोनेज एंड मजूरका इनटू नेशनलिज्म। और वहां की स्थानीय नृत्य, जिसको पोलोनाइज और मजूरका के नाम से जाना जाता है, इनको राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल एंड द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। जब रसिया ने पोलैंड को अपने कब्जे में लिया और उसको अपना कॉलोनी उपनिवेश बनाया, उस समय वहां की स्कूलों से पोलिश भाषा को हटाकर रसियन लोगों ने जबरदस्ती रसियन भाषा को वहां के विद्यालयों में पढ़ने का माध्यम बनाया और रसियन भाषा को प्रचारित करने का काम किया स्कूलों के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, और वहां की पोलैंड भाषा को पूरी तरह से हटाकर रशियन भाषा को स्थापित करने का प्रयास किया गया। In 1831,
an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. यहाँ लिखता है कि रशियन शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए पोलैंड में 1831 में विद्रोहियों का एक सशस्त्र संगठन बनाया गया और ये रशियन जो कि वहां पर पुलिस लोगों को कुचलने का काम कर रहे थे, उनका शोषण करने का काम कर रहे थे, उनके खिलाफ एक सशस्त्र संगठन का निर्माण किया गया 1831 में। और वहां के लैंग्वेज को, पोलैंड की जो पोलिश भाषा है, वहां का जो क्षेत्रीय भाषा है पोलिश भाषा, उसको एक हथियार के रूप में रशियन लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया। जो रशियन चाहते थे कि पोलिश भाषा को पूरी तरह से हटाकर और रशियन भाषा को पोलैंड में एस्टेब्लिश किया जाए और अपने भाषा के माध्यम से अपनी कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन, अपनी संस्कृति सभ्यता का प्रचार किया जाए, तो उसका विरोध करने के लिए वहां पर लोगों ने, पोलैंड के जो विद्रोही लोग थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, उन लोगों ने पोलिश भाषा को रशियन शासन के विरुद्ध इस्तेमाल किया एक हथियार के रूप में। और उस स्थानीय भाषा का इस्तेमाल राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए किया गया, राष्ट्रवादी चेतना को जनमानस के बीच जगाने का काम किया गया। पोलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। चर्च में जहाँ की गॉड का प्रेयर किया जाता है, वहां पर भी पोलिश भाषा का इस्तेमाल किया गया। हालांकि रशियन लोगों ने प्रतिबंध लगा रखा था कि किसी पब्लिक प्लेस, चर्च, स्कूल, कॉलेजों में कहीं भी पोलिश भाषा का इस्तेमाल न हो, फिर भी वहां के राष्ट्रवादी लोगों ने पोलिश भाषा का इस्तेमाल चर्च में किया। एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, और सभी धार्मिक निर्देशों को देने के लिए पोलिश भाषा का ही इस्तेमाल किया गया। एज ए रिजल्ट, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russia. इसका परिणाम यह हुआ कि चर्च में पोलिश भाषा का इस्तेमाल करने वाले जितने भी प्रीस्ट यानी पुजारी लोग थे, बिशप लोग जो थे, जिसको फादर कहते हैं, जो क्रिश्चियन रिलीजन को मानते हैं, ये फादर लोग जिन्होंने पोलिश भाषा का इस्तेमाल किया, उनको रसिया की सरकार ने पनिशमेंट किया और पनिशमेंट देने के लिए उनको जेल में डाल दिया और कुछ लोगों को साइबेरिया भेज दिया। पनिशमेंट देने के लिए उनको साइबेरिया भेज दिया क्योंकि उन्होंने रशियन गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया था और रशियन भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसके बदला में अपने राष्ट्रीय भाषा, अपनी क्षेत्रीय भाषा, पोलिश भाषा का इस्तेमाल किया। द यूज ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज ए सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन। पोलिश भाषा जो है पोलैंड में रशियन शासन के विरुद्ध एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाए, संघर्ष के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। Now I am going to explain the new topic, hunger, hardship and popular revolt. Look here, this topic, hunger, hardship and popular revolt. Hunger means भूख, hardship means कठिनाइयां
एंड पॉपुलर रिवोल्ट मीन्स लोकप्रिय विद्रोह। तो हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट मीन्स भूख, कठिनाइयां और लोकप्रिय विद्रोह। The 1830s were years of great economic hardship in Europe. Dear students, you know very well that in 1830, that was the year of great economic depression in entire Europe or even in American country. ये 1830 का जो वर्ष था ये आर्थिक कठिनाइयों का वर्ष था, क्योंकि वो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का दौर था। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. 19th century के फर्स्ट हाफ में यूरोप की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। वहां पर जनसंख्या बढ़ने के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। लोग रोजगार की तलाश में भटकने लगे। यूरोपीय देशों में जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी बढ़ गई। लोग रोजगार की तलाश में, नौकरी की तलाश में भटकने लगे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर पलायन करने लगी केवल रोजगार की तलाश में। गांव के लोग रोजगार, यूरोपीय देशों में जो ग्रामीण लोग थे वो रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे और वो लोग शहर में जाकर ओवर क्राउडेड स्लम एरिया, बहुत भीड़ भाड़ वाले और स्लम एरिया यानी झुकी झोपड़ी वाली मलिन बस्तियों में, स्लम एरिया यानी झुकी झोपड़ी वाले मलिन बस्तियों में जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, ओवर क्राउड होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, ऐसे जगहों पर वो जाकर रहने के लिए मजबूर होते हैं। A small producers in town were often faced with stiff competition from imports of cheap machine-made goods from England. जो नगरों में जो छोटे उत्पादक थे उनको इंग्लैंड से आने वाले कारखानों से निर्मित माल पर या इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित वस्तुओं से उन्हें बहुत टफ कंपटीशन करना पड़ता था। फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड से के कारखानों से जो वस्तुएं बनकर आती थी वो मशीन मेड होती थी, कारखानों से बनी हुई होती थी। और यूरोपीय देशों में जो क्षेत्रीय उत्पादक थे, जो लोकल प्रोड्यूसर थे, उनके पास उतना हाई एडवांस टेक्नोलॉजी का मशीन नहीं था, न वैसा हाई एडवांस मशीन था। इसलिए उन्हें इंग्लैंड की वस्तुओं से बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की बनी हुई वस्तुओं का फिनिशिंग अच्छा होता था और वो सस्ते भी होते थे, इसलिए कंपटीशन ज्यादा था। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस्ड देन ऑन द कॉन्टिनेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लैंड में ही सबसे पहली बार फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था 18th सेंचुरी में। तो इसलिए जो है इंग्लैंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के मामले में काफी एडवांस था, काफी उन्नत था, इसलिए उसका मुकाबला करना किसी भी देश के लोकल प्रोड्यूसर के लिए कठिन था। दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन which was carried out mainly in homes or a small workshop and was only partly mechanized. ये जो खास तौर से अन्य यूरोपीय देशों के जो क्षेत्रीय लोकल प्रोड्यूसर थे, ये लोग वर्कशॉप यानी स्मॉल फैक्ट्री, छोटे कारखानों में ये लोग प्रोडक्शन करते थे और घर पर भी प्रोडक्शन करते थे और वहां पर मशीनों का इस्तेमाल आंशिक रूप से किया जाता था, बहुत कम किया जाता था।
ज़्यादातर वो हैंडमेड गुड्स का प्रोडक्शन करते थे, अगर मशीन का इस्तेमाल भी करते थे तो आंशिक रूप से, पार्टली। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेटिक स्टिल एंजॉयड पावर, पीजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन। यूरोप के उन क्षेत्रों में जहां पर एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के लोग रहते थे, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में संभ्रांत परिवारों के लोग जो रिच और क्वालिफाइड थे, अमीर भी थे और पढ़े लिखे एजुकेटेड थे, वो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के लोग जो है वो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पावर को एंजॉय करते थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्तियों को एंजॉय करते थे, क्योंकि उनके पास ये तीनों ही पावर थे। पीजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन। किसानों को सामंती प्रथा के कारण, फ्यूडल सिस्टम के कारण, उनको एग्रीकल्चर लैंड पर जो हायर किए हुए जो एग्रीकल्चर लैंड थे, कल्टीवेटेड लैंड थे, उस पर उनको टैक्स देना पड़ता था। लैंड लॉर्ड या लैंड ओनर थे, जमींदार थे, भूमिपति थे, उनको टैक्स देना पड़ता था। इसलिए किसानों के लिए फ्यूडल सिस्टम में बहुत संघर्ष था। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपरेज इन टाउन एंड कंट्री। भोजन की वस्तुओं की कीमतें जो है वो बढ़ गई थी, क्योंकि फसलों का उत्पादन खराब हो गया था। बैड हार्वेस्ट यानी खराब फसल होने के कारण खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हुआ। द ईयर 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. 1848 में जब भोजन का अभाव हुआ और फ्रांस में जब बेरोजगारी बढ़ गई और भोजन का अभाव हो गया, फूड शॉर्टेज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बढ़ती हुई जनसंख्या को पेट भरने के लिए भोजन उपलब्ध नहीं था, तब पेरिस की सड़कों पर लोग उतर आए विरोध करने के लिए, आंदोलन करने के लिए। फ्रांस के पेरिस शहर की सड़कों पर लोग उतर आए। वो भोजन के अभाव और बेरोजगारी के कारण उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा आंदोलन करने के लिए। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। सारे प्रतिबंधों को हटा दिया गया और लुइस फिलिप को